Hello everyone, this is your host Vaibhav, and today we have Dr. Shobit Sethi with us. Hello, Dr. Shobit. Good How are morning. you? Good, sir. Good. So in this podcast, behind the mask, we'll try to uncover some stories about Dr. Shobit's journey as a dentist and how he's managing his practice. So he's running his practice, the Smile Designers in Chandigarh. He's one of the leading practitioners there. And so before Sure. we jump into the actual podcast, I want to talk about your journey as a dentist. So while growing up, how did you become a dentist? While growing up, were you looking at someone? So how did this happen, sir? Hope you're doing well, Vaibhav. Very nice talking to you. And in regard to your question, yes, I have completed my graduation in 2013 while doing my internship. I was fortunate enough. I have opened my charitable clinic just for a hands-on. Ki chalo, let's see ki what is this practice? True. क्या होता है and all that, कैसे हम चलाते हैं and all. So I have started with a charitable clinic in 2013 while doing my internship. Mm-hmm. And then a lot of challenges were there, and it was not that easy thing. Mm-hmm. But धीरे धीरे करते करते I've learned from my failures also. Then in 2014, I was fortunate कि I've joined PG in Mm-hmm. the field of orthodontics. There जी. I have learned many things. Mm-hmm. And it was a difficult time because when I was doing my PG, I was also handling my charitable clinic Mm-hmm. till 2017, जब तक मैंने पास आउट नहीं किया अपनी पीजी. जी. So morning में I used to attend lectures, I used to attend my college, and in the Mm-hmm. evening from 5 p.m. till 8 p.m. I used to run my clinic. छोटा सा Okay. क्लिनिक था बहुत. Okay. एंड देन वहां पे बहुत जिसको बोलते हैं ना हम हाथ खोलना हाँ हाँ हाँ. अपनी प्रैक्टिस में. तो आई जी. हैव डन लॉट ऑफ पेशेंट फ्री आल्सो. जी. देन वहां से आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव लर्नड स्किल्स एंड देन कॉन्फिडेंस गेन बहुत किया. Mm-hmm. एंड देन इन 2017 Mm-hmm. देन आई हैव स्टार्टेड माय ओन प्राइवेट प्रैक्टिस. वो भी थोड़ा छोटा था, जी. नियर माय होम. देन वहां पे भी बहुत हार्ड वर्क किया, मतलब 10 10 आवर्स. फिर कोविड आया. कोविड में मे भी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद थे, तो वी वर ओपन एंड दैट्स द रीजन. वो धीरे धीरे कर करके देन अगेन इन 2022 आई हैव स्टार्टेड the brand name called the Smile Designers. It was very difficult time. It was a turning point. Why? Because जो मेरी छोटी प्रैक्टिस थी वो बहुत अच्छी चल रही थी. जी. देन एकदम से उसको स्विच करना एंड बहुत बड़ा एकदम जंप लेना, दैट वाज it need guts, I would say. But again, now in 2024, last year, we have opened a second branch of the Smile Designers. जी. And it's going, we are one of the, I would say, with the God grace, we are the leading practitioner now in Chandigarh and Mohali Tri-City. And now we are also coming up with our third branch in Gurgaon. Great. Great. Yeah. Yeah. Side by side, I have cleared my licensing exams for Dubai, and it's been like 4 to 5 years now. I'm practicing in Dubai as well. Every month Okay. I go for 3 days, Okay. and yeah, it's going good. Great, great. So one add-on questions to this. So there is one part wherein when we study, there are a lot of clinical things that we were taught, but when we actually start a business, so it's not an just the practice. It's a business where you need to deal with the finances, patients. There are a lot of emotions, and there are many things that are not taught in the school. About managing all this. So how do You you are right. manage to learn? And you mentioned that you have So self-taught yourself with your experience. So please share about that as well. Vaibhav, when I've started my Smile Designers brand in 2022, जी. हमारे पास जो टीम थी, we were just 4 or 5 people, Mhm. and now we have more than 40 people in our team. Okay. In just two practices. So we have a hierarchy, we have a HR, then we have operation managers, we have a quality manager, जी. then we have a front office team, then जी. we have 10 to 12 DAs, then we Mhm. have pantry staff, then we have 6 to 7 doctors, and all are from AIMS and PGI, the STEAM institutes. Then
वी हैव अ इन हाउस मार्केटिंग टीम. Hmm. ऐसे करते 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 वी हैव 40 people those who are in house. Okay. Yeah, it's not that easy to manage 40 people in two clinics, but see, I'll tell you something. आप सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, मैंने जो पूछा है, मुझे बहुत सारे कॉलेज इनवाइट भी करते हैं कि आप लेक्चर दीजिए फॉर द प्रैक्टिस मैनेजमेंट की इन योर 3 to 4 years ऑफ स्पैन इन द स्माइल डिजाइनर्स आपने ऐसे कैसे ग्रो किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. जी बट आई वुड से जब भी आप हायरिंग करते हो, जी हायरिंग जो है वो कभी भी ये मत देखो कि यू नो आप उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. फॉर राइट एग्जाम्पल, आप पेंट्री स्टाफ हायर कर रहे हो, जी है कुछ भी नहीं. जी दे आर जस्ट गोइंग टू सर्व वाटर, दे आर जस्ट राइट गोइंग टू सर्व टी और कॉफी टू योर पेशेंट्स. राइट बट पेशेंट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंट्स आपके रिसेप्शन पे, आपके जो आपका वेटिंग एरिया होता है, 50% पेशेंट वहीं पे ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए. राइट How? The way you greet, the way you talk, the एग्जैक्ट way you are communicating, the way you are, behaving with the patient in the front office. Because उसने patient ने तब तक डॉक्टर को देखा ही नहीं है. यस उसने कोई कंसल्टेशन नहीं लिया. दे आर द बट फेस बाहर का दे माहौल, आर द फेस ऑफ द क्लिनिक एक इन शॉर्ट जी नॉट फेस, आई वुड से हार्ट ऑफ द क्लिनिक. द फ्रंट ऑफिस एरिया एंड द रिसेप्शन एरिया इज द हार्ट ऑफ योर क्लिनिक. सो वहां पे ही 50% कन्वर्जन्स जो है आपकी हो जानी चाहिए. 90% प्रॉब्लम कहाँ आता है डेंटल क्लिनिक्स में, मैं बहुत देखता हूँ, मैं सर्वे करता हूँ बहुत ज्यादा. 90% प्रॉब्लम आता है, पेशेंट सबके पास आते हैं. जी ऐसा नहीं है कि पेशेंट की किसी को कमी है, बट राइट कन्वर्ट नहीं होते. जैसे राइट ही वो प्राइस सुनते हैं, वो चले जाते हैं. राइट फॉर्चुनेटली हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आता. एंड अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो आई थिंक हम बहुत कॉस्टली हैं. आई डोंट थिंक सो कोई कंपैरिजन भी होगा. आई जी चार्ज 30,000 रुपीज फॉर वन क्राउन, वन वेनियर. ओके दो वी स्टार्ट फ्रॉम 20,000. बट अब कोई इतना एक कैप का रेट अगर सुनता है तो डेफिनेटली उसको शॉक शॉक लगता है कि ये इतने कॉस्टली कैसे हैं. एंड स्टिल वी हैव अ वेटिंग. जी लाइक अभी भी मैं अपना कैलेंडर देखूं तो मेरा नेक्स्ट फुल मंथ बुक्ड है. जी How? Because the kind of services, the attitude, the kind of our the way our front office is behaving with the patient राइट and follow ups हमारा इतना जी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि पेशेंट्स दे फील नहीं. आई इवन इफ कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट हमें बोलते हैं कि यू आर वेरी कॉस्टली एंड विल टेक अ सेकंड ओपिनियन. वी ऑलवेज से प्लीज गो अहेड विद द सेकंड ओपिनियन, प्लीज गो अहेड विद द थर्ड ओपिनियन. और 90% केस यही होता है कि वो घूम फिर के हमारे पास ही आते हैं बिकॉज ऑफ आवर कंसल्टेशन एंड देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट. राइट हम पूरा डिजिटल स्कैन्स करते हैं, जब हम पेशेंट को एआई से दिखाते हैं बहुत कुछ, तो पेशेंट 1 मिनट के लिए उनको लगता है कि वाओ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनीबडी इज डूइंग दिस. So small things which matters a lot. यस Yeah. You talked about AI. I was coming to that. Before that, you are mainly into orthodontics. You yourself are orthodontist. So Yeah, when I'm an orthodontist. we thought anyone thought about orthodontist, तो वो पहले तो वो दांतों में जो तारें होती हैं वो ध्यान में Hmm. आती है. तो हाउ इट चेंज, क्योंकि अभी तो जो ब्रेसेस आ गए, इनविजिबल ब्रेसेस आ गए, तो वो जो जर्नी है वो एक बार बताए, वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, और जो एआई, सो वेयर दिस एआई टेकिंग इट, और आप एआई कैसे यूज कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स में. So, वैभव, पहले मैं आपको बताऊंगा कि as an orthodontist, we are so proud that we are the diamond Invisalign provider. I think if I talk about complete Punjab, if I talk about Haryana, if I talk about Himachal, जी Tri-City, J&K, we are the topmost provider of Invisalign. जी And why I'm using the brand name? Because they are uh, सो जब हमारा वर्क फ्लो शुरू होता है इनविजिलाइन में, अर्लियर वी यूज्ड टू डू ब्रेसेस, ये वो. अब डिजिटल वर्क फ्लो होने की वजह से क्या हुआ है कि हम एक तो इनविजिबल अलाइनर्स यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इनविजिलाइन के टॉप मोस्ट प्रोवाइडर्स हैं. एंड हम स्कैनर्स यूज करते हैं जो कि 5D स्कैनर्स हैं. उसमें एआई के थ्रू हम ये भी दिखाते हैं पेशेंट्स को कि दिस इज हाउ यू गोना लुक लाइक आफ्टर द ट्रीटमेंट राइट विद द हेल्प ऑफ एआई जी एंड विद मोशन. ऐसा नहीं कि स्टिल पिक्चर्स दिखाते हैं,
उसकी स्माइलिंग पिक्चर्स दिखाते हैं, वो बात कर रही है तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि दिस इज योर बिफोर, वो एआई उसको अपने आप सिमुलेट कर देता है गॉट बात करते हुए। जी। सो जो पेशेंट देखता है ना कि ये मेरा बिफोर एंड आफ्टर है एंड आई एम लुकिंग सो प्रिटी, स्पेशली फीमेल्स पेशेंट को होता है कि बिकॉज इंस्टा वर्ल्ड है तो दे वांट टू क्लिक देयर पिक्चर्स एंड ऑल दैट। राइट। सो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है। जी। एंड दैट इज द रीजन कि मे बी हमारा वर्क फ्लो इतना बढ़िया है और कन्वर्जेंस इतने अच्छे हैं, एंड वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ काउंसलर्स आल्सो। जी। सो वो कभी प्रॉब्लम नहीं आता इस चीज में। Okay, okay. Now let's move on to some lighter questions. Maybe mood को थोड़ा हम लाइट करते हैं यहाँ पे। एक तो है, अगर आप डेंटिस्ट नहीं होते तो आपका प्लान बी क्या था, और वाज देयर एनी प्लान बी, और यू आर फुली फोकस्ड ऑन बीइंग अ डेंटिस्ट? अब तो प्लान बी कुछ नहीं है, बट या आई एम इनटू रियल स्टेट। या ओके, ओके, या ग्रेट, ओके। स्टिल I'm it's my second business. All right. Uh, what is your guilty pleasure food that you eat, जो आप पेशेंट को बोलते नहीं खाना है लेकिन आप कभी कभी खाते हैं? बहुत सारे हैं। इट्स पिज्जा, बर्गर। All right. Okay. या Okay. What's your favorite dental tool? फेवरेट डेंटल टू माय स्कैनर। Okay. Okay. What या is the most underrated tool, जो आपको लगता है अच्छा है लेकिन उसको नॉर्मली वो अंडररेटेड कैटेगरी में अगर लेते हैं मन? लूप्स। Okay. Okay. How does it help? इट्स एक्चुअली वो स्टार्टिंग में यूज करना बहुत टफ है। जी। आप अपनी नेकेड आई से कंफर्टेबल होते हो, बट हाँ। अगर आपको लूप्स की आदत पड़ गई हाँ। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। एंड ओके। नोबडी यूजेस इट बिकॉज सबको लगता है कि अनकंफर्टेबल लगता है स्टार्टिंग। ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर अ डेंटल कॉन्फ्रेंस? अमाल्फी। ओके, वेयर इज इट? मैं आई थिंक आई हर्ड दिस। यूरोप, यूरोप, इट्स इन ओके, यूरोप। ओके, ग्रेट। या A nicest compliment a patient has ever given to you? मोस्टली मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि अ, आप आपकी एज बहुत छोटी लगती है। Okay, okay. You have a lot of experience, but I think well, it's a very good compliment actually. Okay. या Uh, One, I think you treat a lot of celebrities as well from industries. So आई one थिंक cel ऑल। जी, जी। So one celebrity जिनकी स्माइल आपको एकदम फ्लॉलेस लगती है? आई थिंक सोनम बाजवा। Okay. Great. Let's talk about the, you're using Bestosis in your clinic. So I think you are using Bestosis membership feature. So how this, helping you in building patient loyalty, and how is it helping yourself? No, no, it's one of the best software I've ever seen. Though we do have our in-house app also. जी। हमारे पास in-house app भी है, but with Bestosses there are a lot of features which which incline me towards it. जैसे auto messages, follow-ups, जी। prospects, जी। so that at the end of year हम लोग पूरा निकाल लेते हैं कि कितने कितने पेशेंट्स हमारे पास क्राउन्स के आए हैं, कितने वेनियर्स के आए हैं, कितने इनविजिलाइन के आए हैं, कितने इम्प्लांट्स के आए हैं। जी। सो वो एक बहुत अच्छा टूल है। जी। तो या इट्स बेस्ट। ओके। I've used so many apps, all, but I think Bestosses is one of the best. एक और चीज है, आई थिंक हम लोगों ने कुछ टाइम पहले अभी एक रिसर्च किया था जहां पे पता चला, और इट्स अ नोन थिंग एज वेल, जो आजकल नए पेशेंट्स आते हैं, न्यू पेशेंट एक्विजिशन में गूगल रिव्यूज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके। But Very important. many times, and people are using chat gpt as well, and which is indirectly, I mean, showing the google ke results ही, but many times the owner of the clinic or the doctor hesitates to ask the reviews. They rely on the staff की वो ले लेंगे। इसमें आपका क्या ओपिनियन है, डॉक्टर को मांगना चाहिए बिकॉज द चांसेस इंक्रीजेस आप एक्सपोनेंशियली? मैं I'll tell you. So आप अपने फ्रंट ऑफिस को टारगेट्स दो जी। कि वी नीड
40 to 50 reviews in a month, whatever, 30, 40, 50, 20, whatever, जो भी आपका है सिस्टम, आप मंथ के एंड में रिपोर्टिंग लो। जैसे हम लोग रिपोर्ट लेते हैं मंथ के एंड में कि इस मंथ ये ये आपने अपने किया, देन ऑन बेसिस ऑफ दैट वी इंसेंटिवाइज, Okay. तो एक उनको भी एक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर नहीं मांग सकता रिव्यूज, वो लुक नाइस, Right. इट्स नॉट अ डॉक्टर फोटो, इट्स अ फ्रंट ऑफिस स्टाफ, इट्स अ काउंसलर और वॉट एवर, जो भी आपकी कोई टीम में है, या कई छोटे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे डेंटल असिस्टेंट्स हैं, ट्रेन देम Mm-hmm. कि आई वांट यू नो दीज नंबर ऑफ रिव्यूज। Okay. या Okay. Got it. So I think we are, thanks for your time, sir. And one final advice to your dental colleagues as well, because I'm sure there are a lot of people who look up to you, who are, but the budding dentists. So one message for your dental colleagues and one message for your patients, sir. फॉर माय बडिंग डेंटिस्ट, फॉर कलीग्स, पेशेंस इज द वन वर्ड। जल्दबाजी में ये मत सोचो कि मैंने इस पेशेंट से I've earned this much, no, जी. be patient and work on your skills, and पेशेंट के साथ एथिकल, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट, इवन इफ ही, अगर आपको लगता है कि वो चले जाएंगे, अगर मैं ये बोलूं जाने दो, जी. उसके बैक ऑफ द माइंड में ये आएगा कि दैट पर्सन वाज ऑनेस्ट, बिकॉज नाउ डेज एवरीबडी इज स्मार्ट। जी. पेशेंट्स को आप कुछ भी बोलोगे नहीं चलेगा, Right. you have to be honest. That's the only crux. Mm. If you are honest and ethical, Mm. nobody can stop you. Seriously, this is my experience. All right, sir. Thanks for your time and wish you very good luck for your new Thank you. upcoming practices. And have a good day, sir. Thank you. Thank you. Bye. Take care.